Hello everyone. So today we are going to discuss topic motion. So motion in 1D, 2D, 3D सब पार्ट है. तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे पढ़ेंगे we will discuss it. But आज ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग. सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी do a whole overview of a chapter which we are going to discuss that. तो आपको ये बेसिकली फॉर्मूला जो भी यूज़ होंगी वो उसका मैंने एक चार्ट बना के रखा है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस थिंग एंड फिर ईच इंडिविजुअल हम टॉपिक को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन में जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच वी आर डिस्कसिंग इज अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर बॉडी कोई रिस्पेक्टिव पोजीशन पे है because you can only determine the position with respect to some origin or with respect to some frame of reference. So if this is the position of body xi cap plus yj cap plus z k cap. Okay, this is basically position of body in x, y and z axis. If body changes its position, then comes a physical quantity which is defined as a displacement. Displacement is defined as change in position vector. Okay, displacement को कैसे define किया है? Change in position vector. क्लियर. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. डिस्टेंस इज बेसिकली पाथ प्रेस बाय अ बॉडी और पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी. Then comes the next physical quantity which is velocity. Velocity is basically defined as rate of change of position vector, means delta r by delta t. If you have to find out instantaneous velocity, then you can define it as dr by dt. You have to do differentiation to find out the instantaneous velocity. Then basically how speed is defined? Speed is basically defined as total distance by total time, total distance traveled by total time, as speed is a scalar quantity. If अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. एवरेज स्पीड बोला है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो दिस इज बेसिकली एन फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. अब जैसे कि ऐसा भी होगा डेफिनेशन लेवल पे देखें व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मींस जो चेंज ना हो. वेलोसिटी मींस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ. सो यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज द magnitude of velocity does not change is known as uniform velocity. Same way, what is uniform speed? Uniform speed is a vector quantity, means magnitude of speed should remain same, is basically uniform speed. Okay students, so आपको ये सब समझ में आ गया. Then what is basically जो formula base में है speed में, that average speed और average velocity, it is basically classified into two types. One is time average speed, another is distance average speed. हम लोग speed, average speed को दो टाइप में classify करते हैं, दो टाइप में divide करते हैं. One is time average speed, one is distance average speed. तो time average speed में हमने एक formula बनाई हुई है. If your time interval are equal, then time average speed is v1 plus v2 up to vn by n. And if your distance interval are equal, then average speed is n upon 1 upon v1 plus 1 upon v2 up to 1 upon vn. ठीक है ना. इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तब आपको और अच्छे से आइडिया आएगा. देन ये इसके नीचे का टॉपिक है इसलिए बाद में लिखा, मेरे पास जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख के रखा है. इसके नीचे आपको ये लिखना है. Then comes an acceleration. Acceleration is basically defined as rate of change of velocity, means delta v by delta t. So what is the direction of acceleration? Acceleration का डायरेक्शन क्या होगा? Direction of acceleration is in the direction of change in velocity, not in the direction of velocity. ध्यान रखना, it is in the direction of delta v. So हम लोग अब delta v के डायरेक्शन में बारे में पढ़ते हैं कि delta v का डायरेक्शन कौन सा होता है. delta v किस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में delta v होगा, ये ध्यान रखना. तो delta v मतलब वेलोसिटी जब चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा. तो वेलोसिटी कब कब चेंज होगी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, आइदर इट्स डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंजेस, कब मैग्नीट्यूड चेंज होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे. जब व्हेनेवर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर पैरेलल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज. सपोज इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल एंड यू अप्लाई एक्सेलरेटर, सो आपको पता है उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी वेलोसिटी की. समझ में ना, स्पीड बढ़ने लगेगी. Now, whenever acceleration and velocity both are anti-parallel मतलब opposite direction में है. ठीक है, मतलब if you are driving a vehicle and you apply a brake, तो velocity कम होनी चालू हो जाएगी और finally अगर brake apply करते रहोगे तो zero हो जाएगी. So whenever तो magnitude of velocity will decrease. Okay, तो magnitude कब change होगा velocity का? जब आइदर एक्सेलरेशन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो. पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, एंटी पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा. देन नेक्स्ट, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन.
whenever velocity is perpendicular to acceleration, it's a case of uniform circular motion, means acceleration is v square by r. At that time acceleration is perpendicular to velocity. ठीक है, एंड सो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे थीटा मीन्स एंगल बिटवीन v एंड a इज 0, एंगल बिटवीन v एंड a इज 180. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, v और a का. यहाँ पे ये थीटा 180 है. यहाँ पे थीटा कितना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है मैंने 90 डिग्री. मतलब टू वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑलवेज 0 to 180 होता है. ठीक है ना, 0 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया. अब रिमेनिंग में मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाएंगे अदर देन 0, 180 एंड 90. सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा. जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा. समझ में आया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा. तो जो डायरेक्शन चेंज करता है वो v स्क्वायर बाय r होता है, ध्यान रखना. और जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, d mod v by dt. So acceleration has two component, one is parallel, one is perpendicular. So magnitude wise it can be written as under root of a parallel square plus a perpendicular square. So this is basically about an acceleration. Then comes when acceleration is acceleration के और कैसे पार्ट आते हैं कि if suppose during motion acceleration is constant, whenever acceleration is constant, you can solve that question with the help of these three equations, which are s equal to ut plus half at square, v square minus u square is 2s and v equal to u plus at. आप इन तीन इक्वेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, dv by dt. तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, a equal to dv by dt ही यूज करोगे. और v को क्या लिख सकते हो, dx by dt. तो इसी पे से ये लिख सकते हैं अपन, v can be written as integration of a dt and x can be written as integration of v dt. और v in term of x given है, so a can be written as v dv by dx. so ये चीज याद रखना है आपको. सब फॉर्मूलाज जो है वो मैंने पहले लिख दी हैं. देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये तीन इक्वेशन यूज होती हैं. सो व्हेनेवर यू ड्रॉप अ बॉल और थ्रो अ बॉल इन वन, मतलब ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम अ बिल्डिंग और थ्रो अ बॉल फ्रॉम ग्राउंड टू सम हाइट, ठीक है ना. सो दैट इज अ केस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी. इन मोशन अंडर द ग्रेविटी दो केसेस हैं जिसके आंसर हमें याद रखने हैं, वो भी मैंने पहले लिख दिए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज बॉल इज थ्रोन अप. इफ यू थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u by g आता है. इफ यू थ्रो इन इट विद द वेलोसिटी ऑफ u, सपोज इफ यू थ्रो अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 20, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिटर्न बैक टू योर हैंड, 20 into 2 40. if we take value of g 10, 40 upon 10 4, so total time of flight is 4 seconds. so it will take total 4 seconds to reach again to your 4 seconds by ball to reach again to your hand. मतलब 4 सेकंड के बाद बॉल वापस आपके हाथ में आ जाएगा अगर आप थ्रो करोगे. इसमें एक और भी चीज डिराइव होती है, टाइम फॉर अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम फॉर डाउनवर्ड विच इज इक्वल टू u by g. और बॉल कितने हाइट तक जाएगा, that is u square by 2g. and if you drop a ball from building of height h suppose, so time taken by a ball to reach a ground is under root of 2h by g. ठीक है, and velocity with which it hit the ground is under root of 2gh. तो ये इतनी फॉर्मूलाज हैं जो याद रखनी है आपको. तो आप इसका पूरा एक 1 पेज है, इस पूरे को लिख लो, फिर हम 1 by 1 इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं टॉपिक के अंदर और क्या क्या पढ़ना है उसको डिस्कस करते हैं. लिख लो आप इसे. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले भी बता दिया, अब इंडिविजुअली देखते हैं. बेसिकली डिस्टेंस, जो भी पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है. ठीक है, डिस्टेंस होता है वो पाथ कवर्ड होता है. अब जैसे ये तो बड़े सिंपल से केसेस हैं इसके. जैसे सपोज हम एग्जाम्पल बेसिस पे समझें, सपोज इनिशियली बॉडी इस पॉइंट पे, रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, suppose it has traveled a distance of 3 meter in east direction. so मैं क्या लिखूंगा, उसका displacement 3i cap. traveled 4 meter in north direction, तो displacement क्या लिखूंगा, 4j cap. ठीक है, so net displacement of body कितनी हुई है, so net displacement of body जो इस केस में हुई है, that is vector addition of both 3i cap plus 4j cap is a displacement of body. ठीक है, so what is the magnitude of displacement? It is under root of 3 square plus 4 square. Answer comes out to be 5.
What is the direction of displacement? This is with respect to x-axis 4/3. So theta equal to tan inverse 4/3. This is nothing but the direction of this displacement. So vector quantity shows magnitude as well as direction. तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर में डिस्प्लेसमेंट आपका फाई हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन भी आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते ऐसे हैं, वे ऑफ राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कैलकुलेट कर सकें. वेक्टर में हमने ये पढ़ा है. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन दिस केस? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ पाथ कवर्ड, टोटल 7 मीटर. सपोज एम केस में लिखते हैं तो 7 मीटर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है. अब सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट O to A and finally B. Okay, suppose total time taken by body, total time taken during this process is suppose 3 seconds. For example, it is 3 seconds. So what is in this case? Basically, अगर हम ऐसा देखें, what is the velocity of a body? तो velocity of body क्या हो जाएगा? अगर magnitude wise check करें तो displacement is 5 and time is 3. लेकिन वही इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है ना. लेकिन वही अगर मैं स्पीड बोलूं, सो डिस्टेंस बाय टाइम, सो 7/3. तो ये सिंपल से एग्जांपल है, ये आपको पता होंगे. सेम वे अगर बॉडी एक पॉइंट से, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखें, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे चली गई, फ्रॉम A to B इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इस तरीके से दिया है. ठीक है. और ये आपको जो रेडियस है सर्कल का 3 मीटर गिवन है और टाइम टेकन सपोज 2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ A पॉइंट से जाने में. सो व्हाट इज बेसिकली इन दिस केस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा ये 6, डिस्प्लेसमेंट इज 6 अपॉन टाइम कितना है 2. सो वेलोसिटी इज 3. बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज स्पीड इन दिस केस? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस इज πr अपॉन टाइम, दिस इज 2. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है ना. सो ये इससे आपको बेसिकली थोड़ा आइडिया आ गया होगा व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज एन एवरेज स्पीड और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. एवरेज स्पीड बेसिकली जो होता है, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेक्स्ट जो टॉपिक है, विच इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. आप एक साइड में और लिख दो एवरेज वेलोसिटी क्या है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. नाउ इसमें इसको हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहला जो मैंने इसका डिवीजन किया है वो है टाइम एवरेज स्पीड का. इट इज टाइम एवरेज स्पीड. ओके स्टूडेंट्स. अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहा हूं, आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं. ठीक है ना. सिंपल है ऐसे तो. हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हमको ट्रैवल करना है, ठीक है, हमें टाइम और स्पीड नोन है बट डिस्टेंस अननोन है. सो कुछ डिस्टेंस v1 स्पीड से गए फॉर t1 टाइम, कुछ डिस्टेंस v2 स्पीड से गए फॉर t2 टाइम एंड सो ऑन. हम अपने डेस्टिनेशन को रीच कर गए. लेकिन इसमें सब टाइम इंटरवल इक्वल है. ऑल टाइम इंटरवल्स आर सेम विच इज इक्वल टू से t. सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी, एवरेज की ये साइन है, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी v1 प्लस v2 अप टू vn बाय n. मीन्स एवरेज स्पीड. Or if body is traveling in same direction, so magnitude wise average speed and average velocity are same if they are traveling in a straight line. So at that time it is average speed is arithmetic mean of individual speed. तो ये चीज आपको याद रखना है, डेराइव करने का भी कोई मतलब नहीं है. इसे टाइम एवरेज स्पीड कहते हैं. इसका एग्जाम्पल हम देखें तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. सपोज फॉर हाफ टाइम speed of body is 40 meter per second, and for next half time speed is 50 meter per second.
फाइंड एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालोगे आंसर? देखो हाफ हाफ टाइम है, मतलब 2 इक्वल टाइम है, तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली एरिथमेटिक मीन ऑफ 40 + 50/2, आपका आंसर आ गया 45 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? सो ये थियरी हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको, फॉर 1/3 ऑफ टाइम, सपोज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 2/3 ऑफ टाइम स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किलोमीटर पर आवर में लिखा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप जस्ट एक डेटा लिख रहा हूं मैं ऐसा। फाइंड एवरेज स्पीड। तो यहां पे क्या है देखो, 1/3 ऑफ टाइम एंड 2/3 ऑफ टाइम, तो 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपको इस सिचुएशन को समझाऊं, ये सब मन में ही हो जाना चाहिए, डायरेक्टली आंसर लिखना आना चाहिए, लेकिन फिर भी बताता हूं। देखो टोटल टाइम में से 1/3 ऑफ टाइम कितनी स्पीड है? 40, एंड 2/3 ऑफ टाइम कितनी स्पीड है? 50। तो ध्यान से समझना, ये 1/3 ऑफ टाइम और 2/3 ऑफ टाइम, तो 2/3 का हाफ कितना होता है? 1/3, मतलब 1/3 1/3 1/3, तो मिनिमम 1/3 है कि 2/3 है? 1/3 है, तो सबको 1/3 में डिवाइड करो। समझना, इस 1/3 में स्पीड 40, इस 1/3 में स्पीड 50, नेक्स्ट 1/3 में भी स्पीड कितनी? 50। समझ में ही ना, 1/3 में 40, इस 1/3 में 50, नेक्स्ट 1/3 में क्या होगी? 50। जैसे 4 PM से निकला, 5 PM को पहुंचा, तो 1/3 ऑफ 1 आवर इज 20 मिनट। सो 4 PM to 4:20 PM कितनी स्पीड थी? 40। 4:20 to 4:40 कितनी थी? 50। एंड 40 to 5 o'clock कितनी थी? 50। सो 3 इक्वल टाइम इंटरवल हुए। फर्स्ट हाफ में कितनी स्पीड है? 40। देन फर्स्ट 1/3 में कितनी स्पीड है? 40। नेक्स्ट 1/3 में कितनी है? 50। नेक्स्ट 1/3 में कितनी है? 50 डिवाइडेड बाय 3, तो हो गया। ऐसे जबानी जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतना फायदा होगा। ये आंसर क्या हो गया आपका? 140/3। सो 140/3 इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये आंसर 40 और 50 के बीच में ही आएगा, ध्यान रखना। सो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो 140/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आंसर कब देखो, एक कभी कभी कंपैरेटिव एग्जाम में एक चीज याद रखना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 40 और 50 का है, तो वही आंसर आएगा, बिकॉज एवरेज ऑलवेज लाई बिटवीन दिस टू थिंग्स। अब एक ऑप्शन 35 है, एक ऑप्शन 44 है, एक ऑप्शन 56 है, एक ऑप्शन 60 है, तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 44 वाला टिक कर देना है। आप समझे मेरी बात, ठीक है ना। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। लिख लो इसे, फिर और क्वेश्चंस देखते हैं। सो जैसे मैंने आपको मेन थियरी में पहले ही लिखाया था, 2 टाइप की एवरेज स्पीड हम देखेंगे, एक टाइम एवरेज स्पीड, सेकंड इज डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस एवरेज स्पीड लिखता हूँ सेकंड, जो हम लोग देख रहे हैं, विच इज डिस्टेंस एवरेज स्पीड। सो डिस्टेंस एवरेज स्पीड में आप 1 पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम A to B, ओके। बट सपोज यू नो डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम इज अननोन टू यू, टाइम अननोन है। सो कुछ डिस्टेंस आपने V1 स्पीड से गए, कुछ डिस्टेंस आप V2 स्पीड से गए, एंड सो ऑन, फाइनली लास्ट डिस्टेंस आप Vn स्पीड से गए। बट इफ योर डिस्टेंस इंटरवल्स आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल which is equal to, say it is D, then average speed for this is n upon 1 by V1 plus 1 by V2 up to 1 by Vn। ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर आएगा। सो आपने सोचा होगा ये मैंने क्यों रहने दिया, अपन इसी क्वेश्चन को करते हैं बट डिस्टेंस एवरेज स्पीड से करते हैं। सो यहाँ पे हम रखते हैं फॉर हाफ टाइम, सो फॉर हाफ डिस्टेंस कर देते हैं, एंड फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो टाइम की जगह अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे चेंज करके, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड ऑफ बॉडी इज 40, एंड फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड इज 50। फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस, 2 इक्वल हाफ डिस्टेंस है, तो n की जगह क्या लिखोगे? 2। 1 upon V1 plus 1 upon V2. So 2 upon, what is 1 upon V1? 1 is 40, 1 is 50.
बस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से, ठीक है। सो होपफुली आपको ये आ जाएगी। ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आंसर निकाल लोगे आप इसका, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, दिस कैन बी रिटन एज फर्दर, इट कैन बी रिटन एज 2 into 40 into 50 अपॉन 40 प्लस 50। तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, 90 में से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 9 बचेगा। 540 is 200, 200 into 2 400, 400 by 9 आपका आंसर है। 400 by 9 आंसर अगेन इट लाई बिटवीन 40 एंड 50। तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कितना आ रहा है आंसर, ठीक है। देन सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, फॉर 1/3 ऑफ डिस्टेंस speed is 40 km/h and for 2/3 of distance speed is 50 km/h, find out average speed। तो क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा दिया है, सो सेम वे जैसे प्रीवियस केस में देखा था, टोटल डिस्टेंस दी है, 1/3 ऑफ डिस्टेंस में स्पीड कितनी है 40 एंड 2/3 ऑफ डिस्टेंस में स्पीड कितनी है 50। तो 3 इक्वल इंटरवल करो डिस्टेंस का, इस 1/3 में कितनी स्पीड होगी डिस्टेंस के 40, इस 1/3 में कितनी स्पीड होगी 50 और नेक्स्ट 1/3 में भी कितनी स्पीड होगी 50। सो इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट इंटरवल में 40 है तो 1/40, सेकेंड इस इतने डिस्टेंस में भी कितनी स्पीड है 50 और इस डिस्टेंस में भी कितनी स्पीड है 50, तो 1/50 प्लस 1/50। बस अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स है, समझ में आई बच्चों। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा, लिख लो। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको लिखने के बाद। सपोज अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम होम टू मार्केट विद द स्पीड ऑफ 40 एंड फाइंडिंग मार्केट्स क्लोज ही रिटर्न बैक टू द होम विद द स्पीड ऑफ 50, फाइंड आउट एवरेज स्पीड। सेम आंसर आएगा, होम से मार्केट गया और मार्केट क्लोज था और वापस आ गया। होम से मार्केट 40 की स्पीड गया 40 और मार्केट को क्लोज पाया गया तो वो वापस से 50 की स्पीड पे आया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बोले तो 0, बिकॉज होम से मार्केट गया और मार्केट से होम आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बॉडी का 0। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। अगर डिस्टेंस इंटरवल इक्वल होता है तो ये फॉर्मूला यूज होती है और टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो प्रीवियस फॉर्मूला यूज होती है, और उसके क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। नोट डाउन कर लो इसे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर जैसे हमने देखा है टाइम इंटरवल इक्वल है तो क्या फॉर्मूला यूज होती है, डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है तो क्या फॉर्मूला यूज होती है। लेकिन कभी कभी मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अपन देखेंगे उस क्वेश्चन को। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर ये वाला एग्जांपल एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको आंसर याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ आए तो तरीका याद होना चाहिए, इसीलिए इसको सॉल्व करने का मेथड भी देखो। सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस स्पीड ऑफ बॉडी इज v0, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड ऑफ अ बॉडी इज v0 एंड फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस for first half time speed is v1 and next half time speed is v2, find average speed, ठीक है। सो देखो सिचुएशन क्या गिवन है, आपको ध्यान देना, सॉल्व करने का तरीका इसमें आना चाहिए। ये आ जाए तो इसका आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर आता है 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है ना। ऐसा आंसर आता है इसका। मेरे को कैसे याद है, वैसे आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो देखो A to B, this is the center C, clear। For this half distance, इसको मैंने D लिखा है, speed is v0 and for next half distance, for first half time speed is v1 and for next half time speed is v2। so situation ये है,
ऑब्वियस बात है, इसका टाइम कुछ होगा, उस टाइम को टी डैश लिख देता हूँ, इतने के लिए भी कुछ टाइम होगा ना, तो उस टाइम को अपन क्या लिख देते हैं, टी डैश लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइम को अपन टी डैश लिख देते हैं, इतने टाइम ए टू सी का। अब देखो सुनना ध्यान से, अब ये ना तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, टाइम एवरेज स्पीड का है, मिक्सअप है, तो अपन को बेसिक थियरी पे चले जाने का। बेसिक थियरी क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 2d। मैंने यहाँ पे जानबूझ के हाफ डिस्टेंस को d/2 नहीं लिया है, बेमतलब से रेशनल नंबर को ऐड नहीं करने का, d और d लो, ज्यादा इजी रहेगा। टोटल डिस्टेंस 2d एंड टोटल टाइम इज t डैश प्लस 2t, है कि नहीं, देखो t डैश प्लस 2t। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, 2d अपॉन t डैश। t डैश इज नॉट गिवन, t डैश को आप कैसे लिख सकते हो, यू नो दैट v can be written as d by t, so t डैश को क्या लिख सकते हो, d अपॉन v। इतने टाइम का डिस्टेंस क्या है, d, और इतने टाइम की वेलोसिटी क्या थी, v नॉट, लिख सकता हूँ, बराबर, क्लियर। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। प्लस 2t, नाउ व्हाट अबाउट दिस 2t, तो अब आप क्या करो, ओनली bc पाथ को देखो, फॉर पाथ bc ओनली, दैट्स इट, इसको मत देखो, इसमें ऐसे ही करना होता है। ये डिस्टेंस है, हाफ टाइम की वेलोसिटी v1 और नेक्स्ट हाफ टाइम की वेलोसिटी v2, सो एवरेज वेलोसिटी फॉर bc कितना हो जाएगा, बोलो एवरेज वेलोसिटी फॉर bc, इट कैन बी रिटन एज v1 plus v2 by 2, yes or no। it can also be written as total distance by total time which is 2t। 2t can be written as from this, 2t तो निकालना है, 2t can be written as, बराबर है ना, एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस इज 2 इक्वल टाइम इंटरवल है, v1 plus v2 by 2, डिस्टेंस d है, तो d अपॉन 2t, टोटल टाइम 2t है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओनली फॉर bc वी आर कैलकुलेटिंग, ओके। सो 2t कैन बी रिटन एज d अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 2d ना, 2d कैन बी रिटन एज 2d अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो v1 प्लस v2, सब्स्टिट्यूट 2t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 2d अपॉन d अपॉन v0 प्लस 2d अपॉन v1 प्लस v2, d कॉमन कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ये आपका आंसर आएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया, ये क्वेश्चन आया तो आंसर याद होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा भी पूछ सकते हैं, आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, फॉर 1/3 ऑफ डिस्टेंस स्पीड इज v0, फॉर नेक्स्ट 2/3 ऑफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम स्पीड इज v1 एंड फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम स्पीड इज v2, तब आपको उसको वापस से इस तरीके से सॉल्व करके नया आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फेमस क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, लिख लो इसे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इन दिस, बेसिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, यू नो बेसिकली डेफिनेशन लेवल पे मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मींस व्हिच रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंजेस। सो नेक्स्ट इज, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा बोला है, या इंस्टेंटेनियस स्पीड इस तरीके से बोला, इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको होता है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो आपको 1D में xt रिलेशन दिया गिवन होगा, ठीक है ना। अगर मैं 1D में बात करूं, वन डायमेंशनल सिस्टम में, ये वन डायमेंशन मतलब बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन ओनली इन वन डायमेंशन। सपोज ऐसा दिया है, फॉर एग्जांपल t² माइनस 7t प्लस 12, इस तरीके से आपको सिचुएशन दिया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बॉडी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। कौन से एक्सिस में चेंज कर रही है, एक्स एक्सिस में चेंज कर रही है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा पूछ लिया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx बाय dt, समझ में आया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस लेवल पे तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन ही आता होगा, इसका 2t होगा, 7t का 7 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज अ vt रिलेशन, आपको xt दिया था, vt रिलेशन। कब निकालना है वेलोसिटी, व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड। सो 2 into 2 minus 7, 4 minus 7, आंसर इज -3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स velocity of vehicle is 3 in negative direction, means it is moving in west direction। negative मतलब right, मतलब इधर, positive मतलब इधर, ऐसा समझ में आया। अगर नंबर लाइन ऑब्जर्व करें, सो नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इस तरफ है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टेंटेनियस में आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं 1D में। अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 2, इफ योर x इज इक्वल टू 5t²। सुनना ध्यान से। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये फर्स्ट एंड सेकेंड, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, एक में एवरेज निकालना है, एक में इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, पता है आपको ये। सो व्हाट इज फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कब है बॉडी का, देखो v वेक्टर वाइज 1D में इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ध्यान रखना। ij के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1D में ही है, खाली x एक्सिस में बॉडी अपने मोशन को पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है। सो व्हाट इज फाइनल पोजीशन, मतलब t इक्वल टू 4 पे क्या है बोलो पोजीशन, बॉडी की पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 4 स्क्वायर है 16, 16 5 18 माइनस इनिशियल 1 डालो 5, t माइनस 4 3, 75/3 कितना हो जाएगा ये 25 होगा। सो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 25। नाउ सेकंड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज dx/dt। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 10t, ठीक है 10t होगा। सो व्हाट एट विच टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। सो 40 आ गया। सो ये इंस्टेंट की बात हो गई, ये 1 और 4 के एवरेज की बात हो गई। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको भी लिख लो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज यही चीज आपको 2D में गिवन है, सिंपल ऐसा एग्जांपल दिया है 2D में कि जैसे सपोज इफ x इक्वल टू 2t² एंड y इक्वल टू 4t³, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो आप इसे पोजीशन फॉर्म में लिखो, xi एंड yj। 2D मोशन हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आप चेंज करोगे तो x और y एक्सिस दोनों चेंज हो रही है, समझ में आई बात आपको। सो आप क्या लिखोगे, r कैन बी रिटन एज x क्या है 2t², y क्या है 4t³ j, बराबर ऐसे लिखने का। फिर वेलोसिटी क्या होता है, इट इज dr/dt। डायरेक्टली अब इस लेवल पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, ये 4t और इसका क्या हो जाएगा 12t² j। कब वेलोसिटी निकालनी है, व्हेन वेलोसिटी इज 2 सेकेंड। यहाँ 2 पुट करो 8 आएगा, यहाँ 2 पुट करो 2² इज 4, 4 into 12 इज 48 j। तो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ऑप्शन होगा या तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा √8² + 48 8²। तो ये ऐसे कैलकुलेट करके आपको लिख देना होगा, ठीक है आंसर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो आप इसे लिख, अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा है, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन 2D में दिया है तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, याद होगा tan थीटा इज दिस अपॉन दिस 48/8 6। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 6, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके से लिख लो इसे। ओके तो वेलोसिटीज देख ली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सब देख लिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन में भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया था। व्हेन एक्सेलरेशन वाज पैरेलल टू वेलोसिटी इट्स magnitude of velocity will increase. When acceleration is anti-parallel, magnitude of velocity will decrease. एक्सेलरेशन अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये लिख लो एक्सेलरेशन, ध्यान रखना मैं यहाँ पे वापस से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज ΔV/ΔT। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ ए इज इन ΔV डायरेक्शन, नॉट इन वेलोसिटी डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ना इसमें 1 डायमेंशन में अगर बॉडी है 1D में जा रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी जब एक्सेलरेशन पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब डिक्रीज होगी जब एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होगा। तो वो चीज मैंने पहले ही लिखा थी वो उतनी ही है। इंपॉर्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी,
व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उस इंस्टेंट में इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो किसका केस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे इन अ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r और r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज v स्क्वायर बाय r और r ओमेगा स्क्वायर। आपको ओमेगा पता है क्या होता है, ठीक है ना। ओमेगा क्या है? ओमेगा कैन बी रिटन एज थीटा बाय टी, मीन्स अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है, फॉर वन कंप्लीशन ऑफ सर्कल दिस थीटा इज 2 पाई, फॉर 2 सर्कल्स 4 पाई, फॉर 3 सर्कल्स 6 पाई एंड सो ऑन अपॉन टाइम। एक सर्कल का टाइम कितना लगता है, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। तो दिस इज बेसिकली एन ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, सो विच इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सो यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा होता है दैट इज 2 पाई, और वो टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये एक पॉइंट हुआ। अब एक्सेलरेशन में जो नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में it is basically defined as delta v by delta t, simple, या dv by dt। now जैसे अपन ने पहले एग्जांपल देखा, अगर 1D का ही केस है सिंपल, जैसे सपोज ऐसा दिया इफ x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो आप कैसे करोगे? v निकालोगे पहले dx by dt। व्हाट इज dx by dt? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? 3t स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? माइनस 4t, और 4t का क्या हो जाएगा? 4। देन व्हाट इज एन एक्सेलरेशन? इट इज dv by dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? 60 minus 4। so this is an acceleration at which time you have to find out acceleration when time is 2 seconds, so put 2 here, so this comes out to be 12 minus 4, 8 meter per second square। so this has basically some of the example of instantaneous acceleration, ठीक है ना। लिख लो इसे, फिर आगे समझाता हूँ। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट देखो एग्जांपल यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है वो देखते हैं। सपोज आप लोगों को इस तरीके से सिचुएशन दिया है, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सुनना ध्यान से, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, सपोज 3 मीटर ले लेते हैं, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर and with speed of suppose 20 meter per second, okay, find acceleration, you have to find out acceleration, so acceleration is v square by r, so what is v square? 20 square, r is 3, आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ठीक है। और कैसे पूछ सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सपोज बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, स्पीड ऑफ सपोज ऐसा दे देंगे आपको, एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी इज 40 rpm, 40 rpm, फाइंड एक्सेलरेशन। 40 rpm मतलब ओमेगा, सॉरी 40 rpm दिया है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज जिस सर्कल पे वो बॉडी मूव कर रहा है सपोज 3 मीटर। तो अब क्या करोगे, देखो ओमेगा निकालना होता है, आरपीएम 40 रोटेशन, वन रोटेशन या वन रिवोल्यूशन, आर मतलब रोटेशन या रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन में जो थीटा होता है वो 2 पाई होता है, तो 40 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 80 पाई,
बाय टाइम, समझ में ना, पर मिनट कितना टाइम है बताओ इसमें, 40 रिवोल्यूशन हुआ 1 मिनट में, तो 40 रिवोल्यूशन में थीटा कितना हो गया 80 पाई, और टाइम कितना है 1 मिनट, सेकंड में कितने लिखेंगे 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई बाय 3 विच इज ओमेगा, तो AC कैन बी रिटन एज R ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज योर R इन दिस केस 3 and omega square 4 pi by 3 the whole square, so this way you can find out the answer. So इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, सिंपल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इन जैसे हम लोगों ने देखा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज, ठीक है, in uniform circular motion, and at each and every instant acceleration is toward the center of a circle, acceleration acting always toward the center of circle, and whenever the acceleration and velocity are perpendicular to each other, it's a case of uniform circular motion. Now we are going to know what about the non-uniform motion, ठीक है ना, non-uniform motion, जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट में ही समझाया था, when acceleration and velocity make some angle, suppose this is an acceleration and this is velocity, when we make some angle with respect to each other, but it angle has to be other than 0 degree, 90 degree and 180 degree, because 0 degree पे velocity का magnitude change होगा, 90 degree पे direction change होगा, और 180 पे velocity का magnitude decrease होगा, ठीक है. so ये चीज हमने देखा. उसके अलावा जो भी एंगल है, so ध्यान रखना, this parallel component, this because this acceleration has two component, one parallel to velocity and one perpendicular to velocity. Okay students, so according to the law of vector, all component are added, so a parallel component, a perpendicular component, so magnitude of this acceleration comes out to be under root of a parallel square plus a perpendicular square, ठीक है. so आपने वन पेज में भी देखा होगा, साइड में मैंने ये बनाया हुआ था. now what is basically a parallel component? Parallel component जो होता है वो magnitude change करता है, जैसे it changes the magnitude of velocity, so it is d mod v by dt, and जो perpendicular component है वो direction change करता है, means उसका जो magnitude है वो आपको पता है, it is v square by r और r omega square. Clear students? so ये हम लोगों को पता है. अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ध्यान रखना. जैसे सपोज मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करूं, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, एग्जाम्पल, सो आपको याद रहेगा. सपोज इट्स द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, सपोज हम कोई भी रेडियस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर ले लेते हैं या 2 मीटर ले लेते हैं. ओके, इफ कार इज मूविंग ऑन सर्कल ऑफ radius 2 meter, okay, and its vt relation is given by, and its vt relation is given by v equal to, suppose कोई इक्वेशन अगर हम लें, जैसे t square minus 4t ले लेते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, car is moving on a circle of radius 2 meter and its vt relation is given by v equal to t square minus 4t. You have to find acceleration. Suppose acceleration at 5 सेकंड में बोल दूं, तो ये आपका रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कार इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर. इससे आपको पता चलता है कि देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका. मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा, एंड यू हैव इनफ स्पेस. सपोज जो कार है, इट इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2. तो ईच एंड एवरी इंस्टेंट, सपोज दिस इज नॉट अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट टू द कर्व होगी, तो मैंने एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी टेंजेंट टू द कर्व बना दी, ठीक है ना. यहाँ पे देखो vt रिलेशन है, स्पीड टाइम भी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम होती है. तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं टाइम चेंज करूंगा स्पीड चेंज होगी, मींस इट इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे ये आपको आइडेंटिफाई है कि ये सर्कुलर मोशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड चेंज हो रही है, तो इसके जो सॉल्यूशन में आएगा, देखो स्पीड चेंज कौन करेगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और डायरेक्शन कौन चेंज करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा which is nothing but AC, centripetal acceleration। तो यहाँ पे देखो दो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे हैं, सो यहाँ पे एक नेट एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द इन दोनों के बीच में, बिकॉज दो अगर एक्सेलरेशन है तो जो नेट होगा रिजल्टेंट, दिस इज अ नेट एक्सेलरेशन विच इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो बच्चे के माइंड में हमेशा रहता है ओके इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। अब क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोलूंगा, इन एनी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, बिकॉज जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर नहीं है, देखो एक एंगल पे है, ये रेडियस पे नहीं है, ठीक है ना, मतलब it is not passing through the center of a circle because यहाँ पे parallel component of acceleration है, parallel component speed को change कर रहा है। तो it is not always necessary that in a circular motion acceleration is toward the center, only in uniform circular motion acceleration is acting toward the center of a circle, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले आपको यहाँ पे vt रिलेशन दिया है which is t square minus 4t, so dv by dt, ये जो dv by dt होगा वो ये होगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं 2t minus 4, क्लियर। कौन से सेकंड पे निकालना है, 5 सेकंड पे, तो a इक्वल टू 5 पे पुट करते हैं, 2 into 5 minus 4 कितना हो जाएगा 10 minus 4 6, सो एट दैट इंस्टेंट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अपन लिख देते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नाउ व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज v स्क्वायर बाय r 2 दिया है आपको, ठीक है। v आपको पता है, v कौन से टाइम पे, एट 5 सेकंड, तो यहाँ 5 पुट करो, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज v है ना आपका t स्क्वायर माइनस 4t होल स्क्वायर, कौन से सेकंड पे पूछा है, 5th सेकंड पे पूछा है, ठीक है ना, व्हेन t इज 5 सेकंड। तो यहाँ पे 5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज 25, और 25 4 into 5 कितना होगा 20, 25 minus 25, 5 square is 20, बराबर ना, बराबर है ना, 5 सेकंड पे पूछा है, तो यहाँ पे 25 and 420, तो इट इज 5 square, so 25 by 2 आया, मींस 12.5 आ गया आपका। सो देखो व्हाट इज योर नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ, मैंने लिखा था a parallel square, a perpendicular square, what is a parallel square here, it is 6 square प्लस 12.5 द होल स्क्वायर। तो अब देखो कंपैरेटिव एग्जाम में ये ध्यान रखना, ये 144 होगा, ये 36 होगा, 144 और 36 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, 134 और 144 के अबाव होगा, तो मान लो 150 करीबन कुछ होगा, क्योंकि 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, 150 एंड 36 186 अराउंड होगा, मतलब 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये करीबन 186 अराउंड आ रहा है, मतलब 13 पॉइंट समथिंग होगा, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 13.8 अराउंड आएगा। कंपैरेटिव एग्जाम में क्या होगा, एक ही ऑप्शन होगा जो 13 और 14 के बीच में होगा, उसको टिक कर देना है। तो ऐसे रफ आंसर निकालना है, ऐसा नहीं सर हमको तो ये सॉल्व भी करना नहीं आया, कैलकुलेटर ही नहीं दिया था, अपन को ऐसे रफ आंसर निकालना आना चाहिए। तो होपफुली आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया, इस क्वेश्चन में ये चीज एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर ध्यान रखना ये चीज नहीं दें आपको, क्लियर है, ऐसा नहीं दें, और आपको ऐसे ही पूछे जस्ट वीटी रिलेशन बोल के एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यही आंसर होगा, एक्सेलरेशन 6 सिंपल, ये तो आपको आती है। लेकिन अगर कर्व पार्ट पे मूव हो रहा है बॉडी, तो आपको v स्क्वायर बाय r भी लिखना है, ठीक है ना। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट whenever acceleration is constant, अगर हम acceleration के अंदर है, whenever acceleration is constant, so there are 3 equations of motion which you know, which you have also studied in class 9th as well as in class 11, that s equal to ut plus half at square
v इक्वल टू u प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ये मैंने लिखा था यहाँ पे इस पार्ट पे, whenever acceleration is constant you have to use this type of formula only, ठीक है। so इसमें हम लोग एक सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं ऐड करता हूँ। देखो, बॉडी इफ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, if at time t equals 0 its initial velocity is u, okay, it is not 0, suppose initial velocity is u, and when time is t equal to n second its velocity of body is v. You have to find displacement in nth second। अगर ऐसा फॉर्मूला है nth second, what is the meaning of nth second? nth second मतलब सपोज इस n सेकेंड से एक सेकेंड पहले कितना होता, n माइनस 1 सेकेंड होता टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं nth सेकेंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 7th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 7th सेकेंड की शुरुआत कहाँ से होती है, जब 6 सेकेंड खत्म होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन 6 एंड 7 सेकेंड इज नोन एज 7th सेकेंड, ठीक है। तो ये n माइनस 1 सेकेंड और n के बीच में, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है nth सेकेंड का। डायरेक्टली मैं समझाता हूँ आपको, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n माइनस 1। सो ये फॉर्मूला बनता है nth सेकेंड का। क्लियर। और एक चीज याद रखना, ये डायमेंशनली करेक्ट भी है। ये डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू वेलोसिटी प्लस, सो यू नो दैट ऑलवेज सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, बट यहाँ पे u इंटू टी एक टाइम भी है, बट वो 1 सेकेंड है इसलिए वो लिखा नहीं है अपन ने। बट ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो ये एक और फॉर्मूला बनती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। क्लियर। देन हम लोग देखो, एक इसमें फॉर्मूला आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस की। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला। स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है, सपोज व्हीकल इज मूविंग ऑन अ पाथ, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज 0। सपोज जैसे ये व्हीकल मूव कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी u, या ब्रेक अप्लाई करना चालू किया तो सामने कहीं ना कहीं जाके वो बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कितनी देर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले, सपोज s। सो इफ यू यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज u स्क्वायर 2a, s is your displacement. So stopping distance s can be written as minus u square by 2a. तो ये आपका बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला बनी है। आप इसको लिखो, इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ ये यूज होता है, ठीक है। सो होपफुली ये फॉर्मूलाज, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े, ठीक है ना। आप नोट कर लो पहले। जैसे अगर अपन इसको नोट करें, देखो स्टूडेंट्स, अब इस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फास्ट करना आना चाहिए एग्जामिनेशन में। सपोज कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ, सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इसमें आपको स्पीड गिवन है, सपोज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन ट्रैवल a distance of 20 meter after applying a constant brake। constant brake का मतलब है constant acceleration apply कर रहे हैं, ठीक है ना। so 20 meter travel किया है if speed of car is 10। now if speed of car is 20 meter per second, find distance travel before coming to rest, ठीक है। तो देखो, दोनों केस में ब्रेक कांस्टेंट अप्लाई किए हैं हम लोगों ने, मतलब आपका जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो ये 2a और -1 कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से करने का s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन करने का। तो s2 by s1 क्या हो जाएगा, u2 by u1 द होल स्क्वायर। आपको s2 निकालना है, पहले में डिस्टेंस कितना है बताओ, कितना ट्रैवल किया है फर्स्ट में 20, फाइनल सेकंड वाले केस में वेलोसिटी कितनी है
सेकेंड इज द स्पीड ऑफ कार इज, ये 30 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन ना हो. सपोज 30 और पहले स्पीड कितनी है 10 द होल स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा बोलो, S2 इक्वल टू 20 इंटू 30/10, 3 स्क्वायर इज 9, 180 मीटर. देखो आंसर कितना फास्ट आ गया. नहीं तो अगर आप फॉर्मूला बेस पे जाते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है. सो इस वे में ऐसे क्वेश्चंस को करने होते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के. कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20, ठीक है. और आफ्टर अप्लाइंग अ कांस्टेंट ब्रेक मींस ये जो कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 आफ्टर अप्लाइंग अ कांस्टेंट ब्रेक. मतलब वो 10 की स्पीड से जा रही है, फिर कांस्टेंट ब्रेक अप्लाई किया तो वो 20 मीटर ही ट्रैवल कर पाया. बट इफ कार ऑफ स्पीड इज 30, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. कितना वो ट्रैवल करेगा अगर कार की स्पीड 30 होती है और सेम ब्रेक अप्लाई करते. तो ध्यान रखना दोनों केसेस में, जब वो 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और जब ब्रेक अप्लाई किया, और सेकंड में जब वो 30 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था ब्रेक अप्लाई किया, दैट रिटार्डेशन इज कांस्टेंट. इसीलिए S इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर किया है. तो S2/S1 इक्वल टू U2/U1 द होल स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा. सो इस वे में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना. लिख लो ऐसे स्टूडेंट्स.